خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں میری سرکار سے نسبت ہے، اور دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالی کو مختار سے نسبت ہے، اور میں ان کا گدا ہوں بھلا مجھے کون خریدے گا، میں ان کا گدا ہوں بھلا مجھے کون خریدے گا، میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، اور ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، نازا ہوگی یپا سے علمدار سے نسبت ہے، اور ناموس رسالت پر ہم جا بھی لٹا دیں گے۔ اب یہ میرا قبیلہ یہ بولے، اگر یہ بولیں گے تو یہ حرکت میں آئیں گے، ناموس رسالت پر ہم جا بھی لٹا دیں گے۔ کون کون حضور کے ناموس پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے؟ ذرا محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ ناموس رسالت پر ہم جا بھی لٹا دیں گے، صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، عثمان و علی جیسے وفادار سے نسبت ہے، اور سر جھک نہیں سکتے، سر محشر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے گئے کہ سردار سے نسبت ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے گئے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بس یہ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، لبز تپش ہستی آمادہ اسی نام سے ہے، اور کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہے، جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہے۔ ایک مرتبہ غلامی کا ثبوت پیش کرے اور عقیدت کے ساتھ پھر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، تھوڑی دیر آپ محبتوں کے ساتھ مجھے سماعت کر لیں۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، اور 18,000 مخلوقات کا جس قوم کو امام بنایا، جس مخلوق کو تاج امامت سے اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا، اس مخلوق کو حضرت انسان کہتے ہیں۔ اس مخلوق کو کیا کہتے ہیں؟ جی زور سے بول دیں، حضرت انسان کہتے ہیں۔ اور اللہ نے حضور کے صدقے میں اللہ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی خزانہ جسے دولت ایمان کہتے ہیں، وہ اللہ نے حضور کے صدقے میں حضور کے دیوانوں کو عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج اس ایمان جیسے عظیم دولت کا ہم سودا کرتے ہیں۔ کبھی ہمارے قوم کا نوجوان ایمان کو جو ہے 12 24 کے ہاتھوں میں بیچ دیتا ہے، کبھی ہمارے قوم کا نوجوان اپنا ایمان ایک کپ چائے کی چسکی میں بیچ دیتا ہے، کبھی ہمارے قوم کا نوجوان اپنا ایمان لیڈر کے ہاتھوں میں اوٹ کے ذریعے بیچ دیتا ہے۔ تم اتنے سستے نہیں ہو کہ تمہارے ایمان کا سودا کوئی چائے کی چسکی میں خرید لے، تم اتنے سستے نہیں ہو کہ تمہارے عقیدے کا سودا کوئی اوٹ کے ذریعے خرید لے، تم اتنے سستے نہیں ہو کہ تمہارے تقدس کا صدقہ، تمہارے تقدس کو کوئی عام انسان جو ہے چوراہوں پہ خرید لے۔ خدا کی قسم یہ حضور کے عاشقوں کی بات نہیں ہوتی، ایسے حضور کے عاشق نہیں ہوتے۔ جب بندہ حضور سے سچی پکی عقیدت و محبت کرنے لگے، جب بندہ حضور سے سچی پیار کرنے لگے، تو اس کا ایمان نہ چوراہوں پہ بکے گا، نہ اس کا ایمان جو ہے ہوٹلوں پر بکے گا، نہ اس کا ایمان جو ہے چائے کی چسکی پہ بکے گا، نہ اس کا ایمان دولت دیکھ کر کے کوئی خریدے گا۔ خدا کی قسم
पड़ोसी मुल्क का एक आलिम था जिसने हुजूर से मोहब्बत किया, जो पैरों से चल नहीं सकता था, अल्लाह अकबर जरूरियात जिंदगी को वो जो है पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी जरूरियात की तकमील करने के लिए एक खादिम की उसे जरूरत पड़ती थी, यानी उसे कपड़ा पहनना होता था, एक खादिम की जरूरत पड़ती थी। लेकिन खुदा की कसम, जब उसने हुजूर की मोहब्बत को अपने जिंदगी का वतीरा बनाया, सब हुजूर के लिए जीता था, शाम हुजूर के लिए जीता था, उसका उठना बैठना हुजूर के लिए दीन के लिए होता था। जब बैठता था तो व्हील चेयर पे बैठता था, लेकिन जब वो बोलता था ना तो यूरोप के ऐवानों में जलजला आ जाता था। जब वो बोलता था ना, अमेरिका के बड़े बड़े लीडर उसकी गुफ्तगू सुनते थे। वो क्या बोलता था? बरेली के कलंदर का वो शेर बोलता था, तुझे जाना तुझे माना नरका खैर देगा, लेकिन हद में दुनिया से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत का खुदे नामों से रिसालत का प्रेज़, नारे तकबीर। तुझे जाना तुझे माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जो बोलता था तो जानते हैं पूरी दुनिया आज उस अजीम हस्ती को अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं। सुभान अल्लाह। याद रखें, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपका ईमान बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने आपको 18,000 मखलूक़ात में सबसे ज्यादा हसीन बनाया, सबसे ज्यादा जमील बनाया, सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने हजरत इंसान को पैदा किया। आप कहेंगे आपके पास कोई दलील है? जी हाँ, मेरे पास दलील है। इस्लाम का एक बादशाह गुजरा गया जिसे हजरत हारून रशीद कहते गए। उनकी ज़ौजा को दुनिया मलका सुबैदा कहती है। ये मलका सुबैदा कौन है? वक्त की राबिया है, वक्त की बसरिया है, वक्त की मुस्तहदा है, वक्त की मुहद्दिसा है, वक्त की आलिमा है, वक्त की फकीहा है। ये वो खातून है जिनसे अल्लाह ने एक नेक काम लिया, यानी हिजाज़ मुक़द्दस में ज़ायरीन हरमैन तुर्कमैन शरीफैन के लिए इन्होंने पानी का इंतजाम किया। एक नहर खुदवाई जिस नहर को दुनिया नहरे सुबैदा के नाम से जानती और पहचानती है। ये कौन है? मलका सुबैदा। मलका सुबैदा वो है जिसने दुनिया में अल्लाह के एक वली से, जिसे दुनिया पहलोल ताला कहती है, उस पहलोल ताला से दुनिया में जन्नत खरीदा था। ये मलका सुबैदा वो है अल्लाह अकबर, जो जिनकी नमाज़ें कभी छूटती नहीं थी, जिनका जीना हुजूर के इश्क पे होता था, जिनकी सुख हुजूर के नाम के तराने पे होती थी, जिनके लबों पर कुरान की सदा आती थी। एक मर्तबे की बात है, मलका सुबैदा अपने ख्वाबगाह में थी। हारून रशीद रात के वक्त ख्वाबगाह में आता है और आने के बाद मलका सुबैदा से बोलता है, ए मलका सुबैदा एक बात बोलूं। मलका सुबैदा ने कहा, मेरे सर के ताज बोले तो सही। मलका सुबैदा के चेहरे पर हारून रशीद ने नजर डाली और उसके बाद कहा, तेरे चेहरे को देखता हूँ तो दिल को करार आता है, तेरे आंखों को देखता हूँ दिल को सुकून आता है, तेरे जुल्फों के छांव में दिल को एक अजीब सी हलावत महसूस होती है। जब तू बोलती है तो लबों से फूल झड़ते हैं, दिल यही चाहता है तुझसे गुफ्तगू किया जाए, लेकिन मुझे मेरे ऊपर इतना भार है, मैं मखलूक खुदा की खिदमत में मशगूल रहता हूँ, वरना तुझसे एक आन के लिए दिल नहीं चाहता कि तुझसे जुदा हुआ जाए। यानी अब कह रहे हैं, हारून रशीद कहते हैं, ये मलका मैं कितना बड़ा खुशनसीब हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे मेरे निकाह में अता किया, तुझे मेरे निकाह में अता किया। जब से तू मेरे निकाह में आई, मेरे जिंदगी की तो मेराज हो गई। मैं भूले नहीं समाता, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। कितनी नेक खातून का इंतखाब अल्लाह ने मुझे इतनी नेक खातून जो है अता किया। अल्लाह अकबर। अब मोहब्बत की बातें और ज्यादा पढ़ने लगे तो हजरत हारून रशीद ने आसमान की तरफ जब नजर डाली, आसमान की तरफ नजर उठाई तो क्या देखा? सितारों की झुरमुट में चांद चमक रहा है। हजरत हारून रशीद ने चमकते हुए चांद
चांद को सितारों की झुरमुट में देखा तो मलका सुबैदा से कहा, ए मलका सुबैदा जरा ये तो बता दे, क्या कायनात के अंदर कोई चांद से भी ज्यादा हसीन है? अल्लाह अकबर ये जुमला सुनना था। मलका सुबैदा ने कहा, इस चांद का तो हुस्न की क्या हैसियत, इस चांद के हुस्न की क्या हैसियत। मलका सुबैदा के हुस्न के आगे मलन और हजरत हारून रशीद को जलाल आता है और उसके बाद फरमाते हैं कि याद रख मलका सुबैदा, ये तू क्या कह रही है? क्या तू अपने आप को चांद से ज्यादा हसीन कह रही है? मलका सुबैदा ने कहा, अल्लाह ने मुझे चांद से ज्यादा हसीन बनाया। उस वक्त हारून रशीद ने कहा, याद रख अगर इस बात को तू साबित नहीं कर सकती तो कल सुबह भरे मजमे में मैं तुझे तलाक दे दूंगा। इस जुमले को हारून रशीद की सौजा मलका सुबैदा ने सुना। कहाँ गई वो मोहब्बत की बातें, कहाँ गई वो चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे का खत्तो खाल बदल गया, चेहरे के हालात तब्दील हो गए। मलका सुबैदा के आंखों में आंसू आए। हजरत हारून रशीद अलग करवट, मलका सुबैदा अलग करवट। मलका सुबैदा के आंसू तकिए तक पहुंचे और उन्होंने आसमान की तरफ सर उठा करके कहा, ए दुनिया को पैदा करने वाला रब, ए आदम की तौबा को कबूल करने वाला रब, ए नूह की कश्ती को जो है किनारे लगाने वाला रब, नाने नमरूद से इब्राहिम को निजात दिलाने वाला रब, फिरौन के घर में मूसा की परवरिश करके और मूसा को बचाने वाला रब, हजरत यूनुस को मछली के पेट में जिंदगी अता करने वाला रब, ये किस आजमाइश में मुब्तला कर दिया। एक दिन ऐसा मुझ पे आया था कि मैं मलका सुबैदा के घर में शहजादी बन करके आई, दुल्हन बन करके आई, और एक दिन मुझ पर ऐसा भी मुसीबत का आया, आजमाइश का आया कि कल अगर मैं इस बात को साबित नहीं कर सकती तो तलाक के जरिए मैं रिलीज हो जाऊंगी। कि किसने कहा था? मलका सुबैदा अब रो रो के इल्तिजा कर रही है। खाने जहन में एक सवाल आता है, अल्लाह जब कोई दिल से रोता है अल्लाह उसके आंसुओं को कभी साए नहीं करता। हजरत मलका सुबैदा के दिल में एक ख्याल आता है, ये मलका जिस बहलोल से तूने दुनिया में जन्नत खरीदा था ना, जरा उसके पास अपने मसाले को लेकर के चली जा, हो सकता है तेरे मसाले को बना दे। हजरत मलका सुबैदा कभी इस करवट कभी इस करवट, फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ करके मलका सुबैदा निकलती है और निकलने के बाद हजरत बहलोल ताना को तलाश कर रही है। तलाश से 20 यार के बाद बहलोल ताना को पा ही लिया। जब पाया ना, बहलोल ताना को देख करके बेसाख्ता रोने लगी, सारों कतार रोने लगी, आंखों में आंसू के कतरात देख करके हजरत हारून रशीद की सौजा के आंखों में आंसू देखा। बहलोल बोले, मलका तेरे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मलका बता किस लिए आई है? कहा हसरत बात कितनी सी है, कल शब में मोहब्बत की बातें कर रही थी और मोहब्बत की बातें इतनी ज्यादा तराश हो गई, मैंने आसमान में चमकते हुए चांद को देखा मेरे शौहर ने, और मैंने खुद को चांद से ज्यादा अपने आप को हसीन कह दिया। बादशाह ने कहा, अगर तू इस बात को साबित नहीं कर सकती तो कल भरे मजमे में मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तो जानते बहलोल राना ने जब इस किस्सा सुना, कहा मलका तुम घर जाओ, खाना पीना खाओ और इत्मीनान से रहना, मैं जब बादशाह का फैसला होगा उस वक्त मैं आऊंगा। अल्लाह अकबर, जब एक वली ने कह दिया ना तो वहाँ बहस लोग नहीं करते थे, वहाँ दलीलें तलब नहीं करते थे, वहाँ तो मिजाज में होता था। अगर अल्लाह वाला कह दिया है ना तो बात बन करके रहेगी। अल्लाह अकबर निकलते थे और निकलने के बाद हजरत मलका सुबैदा अपने जो है दरबार में पहुंचती है और हजरत बहलोल वाला अब आ रहे हैं, अपने सफर का आगाज करते हैं। बादशाह के महल के करीब पहुंचे। अब बादशाह जो है कुर्सी मंगाता है और बैठ करके फैसला करता है। मलका सुबैदा हाजिर हो, मलका सुबैदा दरबार में खड़ी हो गई। अब बताओ तो सही, हारून की बीवी जो बादशाह इस्लाम की बीवी हो, उसको जो है खड़े होकर के दलील देना हो, बताओ कौन सा मिजाज होगा, कौन सा फैसला कौन करेगा? बादशाह ने कहा, कल शब की बातें तुम साबित करो वरना भरे मजमे में मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अल्लाह अकबर इतना कहना था, उधर से बहलोल ताना आते दिखाई दिए। हारून रशीद बड़ा एहतराम करता था, बहलोल ताना को आते हुए देखा ना तो फरमाया एक कुर्सी लाई जाए। कुर्सी से खड़ा हो गया और कहा कि ये भीड़ कैसी है, मलका को मुजरिमों के सफों में क्यों रख दिया गया? कहा मलका इस वक्त मलका नहीं बल्कि एक मुजरिमा है, इन्होंने अपने आप को चांद से ज्यादा हसीन कहा गए। अगर
अगर इस बात को साबित नहीं कर सकती तो इन्हें तलाक दे दिया जाएगा। तो जानते पहलवान राणा ने कहा बात क्या है? कहा मलका जुबैदा ने अपने आप को चांद से ज्यादा हसीन कहा, अपने आप को चांद से ज्यादा जमील कहा। तो पहलवान राणा ने कहा कुरान तेरे घर में मौजूद है? कहा हाँ मौजूद है। कहा लेकर के आए, लेकर के आया जाए। पहलवान ने जब इतना हुक्म दिया, हारून रशीद ने खातिम को फरमाया जाओ कुरान लेकर के आओ। कुरान लाया गया। हजरत पहलवान राणा ने कहा 30वां पारा कुरान मुकद्दस का खोला जाए, सूरह वत्तीन पर जाओ। सूरह वत्तीन खोला गया, उसके बाद पढ़ना शुरू किया। कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वस्सैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीर लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा हजरत इतने बड़े सूफी कुरान की आयत करीमा गलत पढ़ रहे हैं। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं, इतने बड़े सूफी कुरान की आयत करीमा गलत पढ़ रहे हैं। कहा दोबारा पढ़ देता हूं, लक़द खलक़ना शम्सा फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा हजरत अब भी गलत पढ़ते हैं। कहा दोबारा पढ़ देता हूं, लक़द खलक़ना दुनिया फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा अब भी गलत पढ़ते हैं। कहा लक़द खलक़नल मलाइकता फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा अब भी गलत पढ़ते हैं। तो हारून रशीद को जलाल आ गया और हारून रशीद ने कहा वक्त का इतना बड़ा सूफी बुजुर्ग हो और कुरान की आयत करीमा तो गलत पढ़ता हो। पहलवान ने कहा सही क्या है तुम ही पढ़ के बता दो। हारून रशीद खड़ा हुआ, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वस्सैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीर लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। जब इतना कहना था पहलवान राणा ने कहा दोबारा पढ़। कहा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा तीसरी बार पढ़। कहा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। पहलवान बोलेगा अगर अल्लाह ने इंसान से ज्यादा हसीन अगर चांद को बनाया होगा, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर सूरज को इंसान से ज्यादा अल्लाह हसीन बनाया होगा, अल्लाह कुरान में कहता लक़द खलक़नल शम्सा फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर मलाइका को इंसान से ज्यादा हसीन बनाया होगा, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता लक़द खलक़नल मलाइकता फ़ी अहसनि तक़वीम। अगर अल्लाह ने जन्नत को इंसान से ज्यादा हसीन बनाया होगा, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता लक़द खलक़नल जन्ना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने कुरान में इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया, जभी तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। जब इंसान को चांद से ज्यादा, सूरज से ज्यादा, लौह से ज्यादा, कलम से ज्यादा, जन्नत से ज्यादा, सारी कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह ने इंसान को हसीन बनाया, तो मलका जुबैदा ने अगर खुद को चांद से ज्यादा हसीन कह दिया तो गलत नहीं किया। अगर मलका जुबैदा को हुजूर के सदक़े में जिंदगी मिली, वो चांद से ज्यादा हसीन हो सकती है, वो सूरज से ज्यादा हसीन हो सकती है, तो बताओ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाला मुस्तफा कितना हसीन होगा, कितना जमील होगा। मैंने बरेली के कलंदर से पूछा मेरे आला हजरत बताए मुस्तफा कितने हसीन है। बरेली का कलंदर बोला वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत तहफ़्फ़ुज़े नामों से रिसालत मुफ्ती ज़ियाउल हक़ काफ़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैंने इमाम से पूछा इमाम हुजूर दिखते कैसे थे? हुजूर कितने हसीन थे, हुजूर कितने जमील थे, हुजूर की शान करीमा क्या थी, कितने हसीन मेरे हुजूर दिखते थे। हुजूर के अब्रू कैसे थे, हुजूर के जुल्फ़े मुबारक कैसे थे, हुजूर का चेहरे मुक़द्दस कैसा था, हुजूर कितने हसीन थे। मेरे इमाम ने फरमाया हुस्न मुस्तफ़ा की बात तो बाद में कर, पहले हुजूर के पसीने की बात कर लेते गए। उन्हीं की घुमाए समर गए, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे गए, उन्हीं की रंगत गुलाब हो गए। सुभान अल्लाह। सीना जब इतना खूबसूरत थे तो बताओ मेरे हुजूर कितने खूबसूरत होंगे, मेरे हुजूर कितने हसीन होंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा एक रिवायत और अभी वक्त है, मचल के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं
ذرا لہک سے بولتے یا رسول اللہ، اور سے بولتے یا رسول اللہ، اور سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور کے لبہائے مبارک کی برکت دیکھیں، حضور کے لبہائے مبارک کی برکت، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، حضور کے لبہائے مبارک کی برکت تو دیکھیں۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا میاں، خدا کی قسم ہم بہت عظیم لوگ ہیں، کیونکہ عظیم نبی کے امتی عظیم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم اتنے عظیم ہیں، اتنے زیادہ عظیم ہیں کہ ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا، ہماری بولی کوئی نہیں لگا سکتا۔ ہم بہت خوبصورت ہیں، بڑے حسین ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، حضور کے لبہائے مبارک کی برکت تو دیکھیں، لیکن اس سے پہلے حضور کے مشت مبارک کی برکت تو سن لے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حدیث کو ایک آپ نے سنا ہوگا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا، لیکن ایک بات یہاں اور بھی سن لے۔ اللہ اکبر، یہ چاند و سورج ایسے نہیں نکلتے، اس چاند و سورج کو چلانے کے لیے ایک فرشتہ نہیں، 2 فرشتہ نہیں، 3 فرشتہ نہیں، 4 فرشتہ نہیں، 5 فرشتہ نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے۔ تب یہ جا کر کے چاند اور سورج چلتے ہیں، یعنی چاند کو پورب سے نکال کر کے پشچم میں ڈبونے کے لیے، پشچم میں غروب کرنے کے لیے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے۔ یہ چلاتے ہیں، تب جا کر کے صبح کے وقت پورب سے وہ سورج کو گھسیٹ کر کے مغرب کی طرف لے کر کے جاتے گئے۔ جب وہ سورج کو گھسیٹتے گئے نا، تب جا کر کے آپ کی گھڑی کی سوئی میں جو گئے 5 6 7 8 9 10 بجتے گئے۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور کرے، یہ چاند و سورج کو چلانے کے لیے 70,000 ملائکہ کی ضرورت پڑے۔ متھرا کے زندہ دل مسلمانوں، اگر اس حدیث کو شوق سے نہیں سنا تو میں سمجھتا ہوں میں اپنی تقریر کو بند کر کے بیٹھ